welcome to the today's lecture. Today we will discuss compound microscope. हम लोगों ने कल सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, हमने उसकी वर्किंग पढ़ी थी, उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है उसके लिए भी हमने एक्सप्रेशन निकाला था। तो आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज बेसिकली एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used for observing the magnified images of tiny objects. मेरे हाथ में जो माइक्रोस्कोप है, this is a compound microscope, and what we are doing with this compound microscope, we are seeing the magnified images of tiny objects. Now, construction of this compound microscope. Let us first study the construction of this compound microscope. This compound microscope, it consists of two lenses. It consists of two lenses, and these two lenses, they are fixed at the free ends of two coaxial tubes. ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेरे हाथ में है, इसमें दो लेंसेज फिट किए गए हैं। वो दोनों लेंसेज जो है, they are fixed at the free ends of two coaxial tubes. अब जो लेंस, द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट, ये वाली लेंस, द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट, जिस लेंस को हम ऑब्जेक्ट की तरफ रखेंगे, दैट लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. हियर दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव बिकॉज दिस लेंस इज फेसिंग द ऑब्जेक्ट. दिस लेंस इज सिंपली अ कन्वेक्स लेंस of short focal length and small aperture. The other lens which is facing the eye, this lens, this is called as eyepiece. It has also a small short focal length and small aperture, but its focal length and its aperture is somewhat bigger than the objective. These two lenses, objective and eyepiece, they are fixed at the free ends of two coaxial tubes. Here we have two coaxial tubes, that means two tubes having the same principal axis. The distance between these two lenses that can be adjusted, I am adjusting here, that can be adjusting by means of these two screws, and these two screws, they constitute a rack and pinion arrangement. ये जो दो lenses है, इनके दरमियान जो distance है, I can adjust the distance between these two lenses by means of this arrangement, and this arrangement is called as rack and pinion arrangement. With the help of rack and pinion arrangement, I can adjust the distance between the two lenses, objective and the eyepiece. So this was about the construction of compound microscope. तो मैंने आपको बताया कि इस compound microscope में हमारे पास दो convex lenses होते हैं, जिनकी short focal length होती है और small aperture होता है. एक फोकल लेंथ जो है, एक कन्वेक्स लेंस जो है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, उसको हम ऑब्जेक्टिव के नाम से पुकारते हैं, और दूसरी कन्वेक्स लेंस जो होती है, वो दैट विल बी टुवर्ड्स द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, उस लेंस को हम कहते हैं आई पीस. इसका जो फोकल लेंथ होता है और एपर्चर होता है, इट इज समवट बिगर देन दैट ऑफ व्हाट ऑब्जेक्टिव. और आई लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो हम एडजस्ट करते हैं बाय मींस ऑफ दिस रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट. Now let us discuss the working of this compound microscope in distinct vision adjustment. मैंने आपको कल कहा हमारे पास दो एडजस्टमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट और दूसरा क्या है हमारे पास, नॉर्मल एडजस्टमेंट. डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट में जो इमेज बनती है, वो लेंस से कितना, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से या आई से कितना दूर बनती है, 25 सेंटीमीटर, यानी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. While as in normal adjustment, ये जो image है, it is formed at infinity. So let us now discuss the working of compound microscope. यहाँ पर हमारे पास compound microscope में दो lenses होते हैं. This is one lens. ये जो lens है, ये मैंने अभी दिखाई, this is facing the object, and this lens is called as objective. ऑब्जेक्टिव, इसको हम O से डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्टिव O. इस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, और इसका ये एपर्चर जो होता है दैट्स वेरी स्मॉल. इसका ऑप्टिकल सेंटर में C1 लेता हूं, और यहां पर बच्चों हमारे पास एक और लेंस है
that is called eyepiece. वो जो लेंस है that's called eyepiece because it's facing the eye of the observer. This is eyepiece. इसको हम E से डिनोट करते हैं, eyepiece. इसको हम E से डिनोट करते हैं because this lens is facing the eye. देखो दोनों lenses की principal axis जो है that is same, so we can say they are coaxial lenses. Now suppose ये इस ऑब्जेक्टिव का फोकस है, let me call this focus of the objective as FO dash. इस जो फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव है इसको मैं यहां से नाम दूंगा FO dash. सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट AB जो है वो मैंने रखा जस्ट नियर द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव. दिस इज OB, AB, this is the tiny object. It's placed beyond the focus of objective, say at a distance u0 from the optical center C1 of objective lens. ये मेरा eyepiece है. इस eyepiece का जो optical center है वो मैं C2 रखूंगा. देखो AB is the object. It is placed perpendicular to the principal axis beyond the focus FO dash of objective lens. एक ray of light इस ऑब्जेक्ट से आएगी, it will be parallel to the principal axis. After refraction, this will pass through the focus of the objective. यहां से ये पास हो गई. This is focus F0 of the objective. तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है that is FO, that's called as focal length of objective. दूसरी ray of light जो है that will pass through the optical center and goes undeviated. इन दो रेजों ने आपस में यहां काटा. This point is A dash. This A dash इसको हम A1 रखेंगे नाम. This A1 is therefore the inverted image of object A. So जो ये ऑब्जेक्टिव है इसने इस पॉइंट A की कौन सी इमेज बनाई? इन्वर्टेड इमेज. यहां से हम A dash B dash को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे on the principal axis A1 B1. This is अब मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. Therefore this A1 B1 जो है it is the real and inverted image of object AB. इसका मतलब है जो ये ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है at a distance V0 from the objective. ये जो A1 B1 है it is formed at a distance of V0 from the objective. ये जो है suppose this is the focus of eyepiece. Now this A1 B1 जो इमेज है किसकी? AB की, जो किसने बनाई? ऑब्जेक्टिव ने. This A1 B1 now acts as the object. This A1 B1 now acts as the object for eyepiece. जो A1 B1 है जो इसकी इमेज है AB की, किस लेंस ने बनाई? ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई. This will act as object for eyepiece. ठीक है ना? इस eyepiece को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो A1 B1 है it lies between its optical center C2 and focus FE. Means that A1 B1 जो है it lies in the focal plane of the eyepiece. Now इस A1 B1 से एक ray of light आई. This comes parallel to the principal axis. After refraction it will pass through the focus of the eyepiece. यहां से चलिए it will pass through the focus FE of the eyepiece. Another ray of light passes through its optical center and therefore it goes undeviated. इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज़ों ने आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन जब मैं इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करूंगा they intersect each other. When I produce them backwards they intersect each other at point A2. ये जो है इसको मैं नाम रखूंगा A2. Therefore ये हमारा A2 जो है this A2 is the virtual image of A1 because it is formed on the same side of A1. अब यहां से A2 B2 जो है
इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस को, देयरफॉर दिस A2B2 जो है, दिस इज द फाइनल इमेज of the object AB. This final image A2B2 is formed at a least distance of distinct vision from the optical center of eyepiece, या मैं कहूंगा इसको from the optical center of eyepiece, or I will call this from the eye of the observer. This is eye of the observer. It is formed at a least distance of distinct vision D from the optical center of the eyepiece, or I can say from the eye of the observer. चूंकि A1 B1 जो है it acts as object for the eyepiece, therefore इसकी जो distance from the optical center of eyepiece है वो मैंने रखी UE. किसके बराबर रखी? UE. और जो ये FE है, this is the focal length of eyepiece. FE है, this is the focal length of eyepiece. यहां से भी ये FE है, focal length of eyepiece. तो this is the ray diagram explaining the working of compound microscope. एक बार फिर से AB जो है, ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, आपने इसको प्लेस किया परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड द फोकस FO डैश ऑफ द ऑब्जेक्टिव. कितना दूर लिया ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से? U0. अब इस ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट ने बनाई, ऑब्जेक्टिव ने बनाई, उसका नाम क्या है? A1 B1, दैट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ V0 from the objective. Now this A1 B1, this acts as object for eyepiece, which is adjusted in such a way that A1 B1 lies between its focus and the optical center C2. It means that A1 B1 lies in its focal plane. Now this A2B2, this is the final image of object AB formed by the eyepiece, at least distance of distinct vision from its optical center or from the eye of the observer. Because eye of the observer coincides, while observing the image, eye of the observer coincides with the optical center of the eyepiece. Now here, this object A2, this image, final image A2B2, it is erect with respect to A1 B1, but it is inverted with respect to the object AB. It means that the final image of the object seen in the compound microscope is always inverted. आप यहां देखो, जो A1 B1 है यह है erect with respect to जो A2 B2 है यह है erect with respect to A1 B1, मगर with respect to this object ये क्या है? Inverted. So this was about the working of compound microscope. Now let us discuss magnifying power of compound microscope. Magnifying power of compound microscope. Magnifying power of compound microscope in distinct vision adjustment. In distinct vision adjustment. आज हम देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन डिस्ट्रिक्ट विजन एडजस्टमेंट. मैंने डिस्ट्रिक्ट विजन एडजस्टमेंट क्यों बनाया? क्योंकि जो आपका इमेज है दैट इज फॉरवर्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फ्रॉम द आईपीस. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सी सपोज बीटा जो यहां पर है, this beta is made by the final image A2B2 at the optical center, or we can say at the eyepiece, or simply at the eye of the observer. इसी तरह हम एक काम करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को भी उठाएंगे यहां से, इसको भी रखेंगे at least distance of distinct vision from the eyepiece. यानी ऑब्जेक्ट को मैंने AB से उठाया और इसको रखा मैंने PB2 पे. इस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक एंगल बना रहा है, किसके साथ? आईपीस के साथ, या आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के साथ. उस एंगल को मैंने रखा अल्फा. इन दो एंगल्स यानी बीटा बाय अल्फा जो होगा, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट or at least distance of distinct vision from the eyepiece, that is called as magnifying power of compound microscope. हम ऐसे बोलेंगे, magnifying power of compound microscope in distinct vision adjustment is defined as ratio of angle subtended by the final image A2B2 at the optical center of eyepiece or at the eye to the angle subtended by the object
at the optical center of eyepiece or at the eye when both object and image, that means when both A2 B2 and PB2, or you can say AB, they lie at a distance of D, capital D, and a least distance of distinct vision from the center of the eyepiece, from the optical center of the eyepiece, or we can say from the eye of the observer. Therefore we write magnifying power is equal to ratio of angle subtended by the final image at the optical center. What is that? That is beta divided by angle subtended by the object at the optical center, that is alpha, when both are at least distance of distinct vision from the eyepiece. Therefore we can write magnifying power is equal to beta divided by alpha. Since beta and alpha are very small, therefore this beta will be approximately equal to tan beta and this alpha will be approximately equal to tan alpha. Therefore we write magnifying power is equal to tan beta divided by tan alpha. चूंकि बीटा और अल्फा जो है वो बहुत स्मॉल है, तो बीटा जो होगा दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा जो है दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू tan अल्फा. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं इस फिगर से tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू निकालूंगा. यहां देखो, इन ट्रायंगल A2 B2 C2, A2 B2 C2, tan बीटा जो होगा वो होगा A2 B2 डिवाइडेड बाय C2 B2. मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल A2 B2 C2 tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी A2 B2 डिवाइडेड बाय C2 B2. तो मैंने tan बीटा का वैल्यू निकाला इस ट्रायंगल से. सिमिलरली मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल PB2 C2, PB2 C2, इस ट्रायंगल से मैं tan अल्फा लूंगा. tan अल्फा होगा बराबर परपेंडिकुलर PB2 बेस डिवाइडेड बाय बेस C2 B2. सो दिस इज tan अल्फा इज इक्वल टू PB2 डिवाइडेड बाय C2 B2. चूंकि मेरा जो PB2 है दैट इज इक्वल टू AB, PB2 जो है दैट इज इक्वल टू AB, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय C2 B2. क्यों? जो आपका PB है दैट इज इक्वल टू AB. अब मैं tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू जो है लेट मी सबस्टिट्यूट इट इन द फर्स्ट. तो मेरा जो फर्स्ट है, व्हाट द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, मेरा मैग्नीफाइंग पावर निकलेगा बराबर A2 B2 डिवाइडेड बाय C2 B2 होल डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय C2 B2. C2 B2 कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को क्या निकला, हम लोगों को यहां पर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमारा निकला A2 B2 डिवाइडेड बाय AB. हमारा मैग्नीफाइंग पावर निकला A2 B2 डिवाइडेड बाय AB. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर सेकंड रखेंगे. A2 B2 जो है दिस इज साइज ऑफ द फाइनल इमेज. A1 B1 जो है दिस इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मगर ऑब्जेक्ट किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए है. ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो है A1 B1. जो A2 B2 है ये किसकी इमेज बनी, ये इट इज नॉट द इमेज ऑफ AB, इट इज बेसिकली द इमेज ऑफ A1 B1. हम क्या काम करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है इसके RHS को हम A1 B1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग RHS of equation second by A1 B1. A1 B1. तो ये बनेगा बच्चा हमारा मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू A2 B2 डिवाइडेड बाय AB इंटू A1 B1 डिवाइडेड बाय A1 B1. अब देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे A1 B1 डिवाइडेड बाय AB इंटू A2 B2 डिवाइडेड बाय A1 B1. यहां देखो मैंने लिखा A1 B1 डिवाइडेड बाय AB इंटू A2 B2 डिवाइडेड बाय A1 B1. यहां देखो जो A1 B1 है ये इमेज बनाई किसने, ऑब्जेक्टिव ने. सो A1 B1 इज द साइज ऑफ इमेज फॉर्मड बाय द ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज AB?
AB is the size of object। इसका मतलब है जो ये A1 B1 है, this is size of image formed by the objective divided by size of object। That means जो ये A1 B1 divided by AB है, this is equal to magnification। This is equal to magnification। किसका magnification? Objective। चूंकि A1 B1 जो है, this is the image formed by the objective। This is the image formed by the objective। जो A1 B1 है वो उस इमेज का साइज है। इसी तरह जो AB है वो ऑब्जेक्ट का साइज है। साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। लेकिन यहां पर ये किसकी मैग्निफिकेशन है? ऑब्जेक्टिव की। तो इस मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करेंगे m0 से। तो मैं लिखूंगा इसको ऐसे, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू m0 इनटू व्हाट इज m0? m0 इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसी तरह जो A2 B2 है, ये है इमेज। जो इमेज किसने बनाई? जो इमेज आईपीस ने बनाई। A2 B2 जो है, दिस इज एन इमेज एंड दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आईपीस। इस A2 B2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? A1 B1। तो यहां पर हमें आया A2 B2 मींस साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द आईपीस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट A1 B1, यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। This is size of image formed by the eyepiece divided by size of object for eyepiece। इसका मतलब है this will be the magnification of eyepiece। Let us denote it by ME। So मैंने यहां लिखा magnifying power is equal to MO into ME, where MO is the magnification of the objective और ME जो है that is magnification of eyepiece। Now let us calculate MO and ME। Let us move forward। अब बच्चों हमारा मैग्निफाइंग पावर निकला MO इंटू ME। इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ लेट अस कैलकुलेट MO, डिटर्मिनेशन ऑफ MO। व्हाट इज MO? दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव O। MO जो होता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, वो हमेशा होता है बराबर इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी U डिवाइडेड बाय V। अगर हम यहां देखेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, जो आपका U है दैट इज माइनस U0। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज पर साइन कन्वेंशन वो क्या है? माइनस U0। हियर U इज इक्वल टू माइनस U0 ऑब्जेक्टिव के लिए। V जो है, जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई, कौन सी बनाई? A1 B1। तो V जो है दैट इज V0 एज पर साइन कन्वेंशन। V जो है दैट इज V0। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो हमें निकला MO इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय माइनस U0। तो ये निकाला मैंने मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सिंपली बाय यूजिंग फार्मूला V बाय U। U जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो है माइनस U0 और इमेज डिस्टेंस जो है वो है V0, क्योंकि इसके लिए जो इमेज है वो है A1 B1। अब हम डिटरमाइन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ME, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। इसको हम डिटरमाइन करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। ME होगा बराबर V बाय U, यानी इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां देखो साइन कन्वेंशन लगाओ, जो आईपीस है इसके लिए ऑब्जेक्ट है A1 B1, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो मैंने ली UE एज पर साइन कन्वेंशन, दिस इज माइनस UE। ठीक है, और आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो है D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, और यहां पर वो माइनस D है, क्योंकि एज पर साइन कन्वेंशन वी आर मेजरिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये माइनस D है और ये माइनस UE है। नाउ हियर V जो है दैट इज इक्वल टू माइनस D, U जो है दैट इज इक्वल टू माइनस U। दिस इज साइन कन्वेंशन। किसके लिए मैंने साइन कन्वेंशन लगाया? ये साइन कन्वेंशन यहां आईपीस के लिए, और यहां था साइन कन्वेंशन किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो लगाओ इस इक्वेशन में, तो आपको ME जो है, ME आपका निकलेगा माइनस D डिवाइडेड बाय माइनस UE। माइनस D डिवाइडेड बाय माइनस UE, माइनस और माइनस कैंसल, तो आपका ME जो है दैट वो निकला आपको D बाय UE।
इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी बाई यू ई हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हमारे पास पता है एज पर लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला जो है बच्चों वो हमें कहती है 1 बाई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। चूंकि आईपीस जो हमारा है, दिस आईपीस, दिस से कन्वेक्स लेंस, सो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो होगी पॉजिटिव। तो हमारा एफ जो यहां पर है, हियर F is equal to FE for eyepiece, और eyepiece के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो है -d, यहां से -d, क्योंकि फाइनल इमेज A2 B2 है वो eyepiece ने बनाई। हम लिखेंगे V is equal to -d, और आपका U जो है वो A1 B1 इसका ऑब्जेक्ट है, और U आपका है वो है -UE। U जो है वो है -UE, U जो है दैट इज -UE। इनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, we get 1 by Fe is equal to 1 by minus d, 1 by minus d minus 1 divided by minus ue। ये बनेगा 1 by Fe is equal to minus 1 by d plus 1 by ue। हमें क्या निकाला है, d by ue। हम क्या काम करेंगे, जो ये इक्वेशन यहां निकली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट by d, multiplying throughout by d। ये क्या बनेगा, d by fe is equal to minus d by d plus d by ue। d और d कैंसल, हमारा बना d by fe is equal to -1 plus d by ue, d by ue। -1 को यहां लाओ तो आपको यहां निकलेगा d by ue इज इक्वल टू, ये 1 वहां जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब डी बाई यू का वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी बाई यू का वैल्यू हमें निकला 1 प्लस डी ई बाई एफ ई, ठीक है ना। हम इसको किस पे पुट करेंगे, 4th में। देयरफॉर 4th बिकम्स, तो आपकी 4th जो है वो बनेगी एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो निकाला मैंने MO का भी वैल्यू और ME का भी वैल्यू। MO का वैल्यू सिंपली V बाई यू, U जो है ऑब्जेक्ट के लिए -U0 है, U0 है, V जो है V0 है, तो निकला ME। MO तो फिर ME निकला ऐसे ही फार्मूला से, फिर मैंने D बाई यू निकाला, उसके लिए थिन लेंस फार्मूला अप्लाई की। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इस MO और ME इन दोनों का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करूंगा किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है ना। मैं लिखूंगा देयरफॉर put value of MO and ME in equation number 3, in equation number 3। जब हम इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू देंगे तो हमें निकलेगा मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू MO का वैल्यू किसके बराबर है बच्चा, शाबाश, V0 डिवाइडेड बाय -U0, ठीक है। अब इनटू जो आपका ME है, ME का वैल्यू क्या है वहां पर निकाला मैंने, वो है 1 प्लस D डिवाइडेड बाय FE। ये है ME का वैल्यू और ये है MO का वैल्यू। इनको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकला इज इक्वल टू V0 बाय -U0 इंटू 1 प्लस D बाय FE। लेट मी राइट इट हियर। तो मुझे जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है that comes out to be V0 divided by -U0 into 1 plus D divided by FE। ये एक एक्सप्रेशन है, let me call this equation number 5। This also represents the expression for the magnifying power of compound microscope। Now let me write it in some another form। चूंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है it is very close to the focus of the objective। जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इट इज वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द, वेरी क्लोज टू द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देयरफॉर जो मेरा ये पॉइंट बी है, दिस विल कोइंसाइड विद F0।
तो इसका मतलब है जो C1B होगा दैट विल बी इक्वल टू CF डैश CFO डैश. नाउ सिंस द ऑब्जेक्ट is close to the focus f naught dash of object 2, therefore point B coincides with f naught dash. therefore मुझे ऐसे बनेगा जो C1B है, this C1B it will be approximately equal to C1 F naught, C1 F naught dash. जो C1 F naught dash है वो है इस ऑब्जेक्ट 2 की फोकल लेंथ F naught. तो मैं लिखूंगा फिर C1B जो है that is U naught या U लगाऊं that is U naught. तो C1B जो है वो है U naught. This is approximately equal to C1 F naught dash जो है वो है बराबर F naught. That means U naught is approximately equal to F naught. Similarly, जो मेरी इमेज A1 B1 इमेज जो है जो ऑब्जेक्ट ने बनाई that is very close to the eyepiece. इसका मतलब है जो आपका B1 है, आपका B1 जो है this point it coincides with the C2. It coincides with the C2. Similarly, the image A1 B1 formed by the object 2 is close to eyepiece. जो इमेज A1 B1 है जो ऑब्जेक्ट ने बनाई है it is close to eyepiece. therefore जो आपका B1 है it coincides with C2. जो B1 है it coincides with B2. इसका मतलब है जो आपकी डिस्टेंस C1 B1 है it will be now approximately equal to C1 C2. therefore C1 B1 this will be approximately equal to C1 C2. जो डिस्टेंस जो कि पॉइंट B1 जो है ये कोइंसाइड करेगा C2 के साथ. इसका मतलब है जो C1 B1 डिस्टेंस है this will coincide with C1 C2. What is C1 C2? C1 C2 जो है that is वो यहां से यहां तक डिस्टेंस है that is called as length of the microscope tube. C1 C2 जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्टिव का सेंटर ऑफ कर्वेचर और आईपीस का सेंटर ऑफ कर्वेचर उनके दरमियान जो लेंथ है that length is called as length of the microscope tube. तो हमारा जो C1 B1 है C1 B1 वो V0 था. इसका मतलब है हमारा V0 जो है that is approximately equal to L. अब हम U0 और V0 का वैल्यू देंगे इक्वेशन नंबर 5th में. Put the value of U0 and V0 in equation 5th. जब हम ये वैल्यू इक्वेशन 5th में देंगे तो इक्वेशन 5th क्या बनेगी? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू V0 के बदले L डिवाइडेड बाय U0 के बदले माइनस F0 into 1 plus D divided by Fe. This is the expression for the magnifying power of the compound microscope. अब थोड़ी सी डिस्कशन. नेगेटिव साइन जो इसमें है that shows that the final image seen in the compound microscope is inverted, not erect, it is inverted with respect to the object. जो फाइनल इमेज आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे that final image is inverted with respect to the object. Second, जो मैग्नीफाइंग पावर है that is inversely proportional to the focal length. इसका मतलब है smaller the focal length of the lenses, greater will be the magnifying power. This completes this beautiful question.